everyone. I'm Shivani Trivedi from ABS Engineering College, Ghaziabad. In the series of computer design, this is the next topic, which is language processing system in compiler design. These are the topic that I'm going to cover in this video: language processing system, preprocessor, compiler, assembler, linker, and loader. What is language processing system? In the previous video, I already told about what is compiler, what are the types of compiler, and what are the two major phases of the compiler, that is your analysis phase and synthesis phase, and what is interpreter and what are the difference between compiler and interpreter. So in this video, I'm going to start with language processing system. So I already told about what is the role of compiler. Compiler basically converts your high level language which is understood by us into machine level language, which is into low level language. Now, compiler just convert high level language into low level language, but machine understand only binary language, which is zeros and ones. So what language processing system do? It converts the high level language into zeros and ones with the help of these tools. Like we have preprocessor, we have compiler, we have assembler, linker, loader, and executable code. So what is the exact language of language processing system? These program, which is written in high level language, it is fed into a series of tool. It is fed into a series of tool. Tools means preprocessor हो गया आपका, compiler हो गया, assembler हो गया, आपका linker हो गया, loader हो गया, and OS components to get the desired code. What is the desired code? Which is understood by the machine only in the form of zeros and ones. So this is a confusion here. Compiler do not convert it into zeros and ones. Compiler do not convert it into zeros and one. Compiler only convert it into high level language to low level language. These the tools, these language processing systems, set of tools, this convert it into a zeros and ones. Now, in this diagram, you can see that we give the input at high level language, which is understood by us. It first goes to preprocessor. It first goes to preprocessor. In the further slide, I will take each and every tools and explain what are the function of these tools. Preprocessor. From these preprocessor, we get the pure high level language. And pure high level language goes to compiler, and compiler convert it into a low level language, which is your assembly language. This is your assembly language. This is a misconception that assembly language is in the form of zeros and one. No, assembly languages are not in the form of zeros and ones. It is in the form of mnemonics. Okay? Previously, in the previous time, we use you use today in C Python, but पहले इसको assembly language को programming के लिए हम लोग use करते थे. अभी हम लोग जैसे C Python use करते हैं. So assembly language are not in the form of zeros and ones. It is in the form of mnemonics. So assembly language goes to assembler. Assembler convert this assembly language into object code, which is your relocatable object code. What does it mean? Relocatable object code matlab that code, this code can be loaded, this code can be loaded anywhere in the memory. मेमोरी में इसका कोई पर्टिकुलर एक एड्रेस नहीं है. रीलोकेटेबल नाम ही ये बता रहा है, आप इस कोड को मेमोरी में किसी भी एड्रेस पे लोड कर सकते हैं. ठीक है. देन लिंकर क्या करता है? सारे ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, वो हम आगे देखेंगे. एंड देन लोडर क्या करता है? आपके रीलोकेटेबल कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? एब्सोल्यूट मशीन कोड में. एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? दिस कोड this code that is assembled here, that is assembled here, which it is assembled and worked at one specific location only, specific location in the memory. It means रिलोकेटेबल मशीन कोड को हम मेमोरी में कहीं भी लोड कर सकते हैं, बट एब्सोल्यूट मशीन कोड को हम मेमोरी में किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही लोड कर सकते हैं. वो वहीं पे ही रहेगा और वहीं पे रह के ही काम करेगा. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर this is the executable code which is in the form of zeros and one, which is understood by the machine. So this whole are the process of language processing system. In the next slide we will take one by one what is the function of preprocessor.
प्रीप्रोसेसर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ मतलब क्या है? व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स? आप प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, आप सबसे ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। दैट हैश वर्ड, हैश इंक्लूड, हैश, दिस इज योर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो ये क्या करता है प्री प्रोसेसर? ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फाइल्स होगी इसको आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करके इस लाइन को रिमूव कर देगा। मेरी बात समझना, ये क्या करेगा? हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फाइल्स होंगी इसको आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देगा और इस लाइन को रिमूव कर देगा। लाइकवाइज इट ऑल्सो डू मैक्रो एक्सटेंशन। आपने कभी यूज किया होगा हैश डिफाइन। हैश डिफाइन क्यों यूज करते हैं? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग सब लोग बैंक जाते होंगे, बैंक में रेट होता है, रेट। तो कभी मान लो रेट की आज वैल्यू है 5%। रेट की वैल्यू कंटिन्यूसली बैंक में चेंज होती है, एक साल बाद उसकी वैल्यू होगी 6%। तो मेरे को प्रोग्राम, अगर मैं बेसिकली बैंक के लिए एक प्रोग्राम बना रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आज मेरी 5% वैल्यू है, एक साल बाद 6% वैल्यू हो जाएगी। तो मुझे प्रोग्राम में जहां भी रेट यूज हो रहा होगा वहां पे जा जाके मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। इसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ? ये मैक्रो यूज कर सकती हूँ, हैश डिफाइंड रेट। ये क्या करेगा? आपको रेट की वैल्यू अगर एक साल बाद 6% हो रही है 5% से, तो आप सिर्फ मैक्रो एक्सपेंशन में चेंज कर दीजिए, यहाँ पे रेट की वैल्यू चेंज कर दो। अपने आप ये रेट जहां जहां पे भी आपके प्रोग्राम में यूज होगा उसकी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी? 6% से। तो ये वाला काम भी कौन करता है? प्री प्रोसेसर। ये जहां जहां पे भी आपकी रेट वर्ड यूज होगा उसको उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। दूसरा क्या करता है? ऑपरेटर कन्वर्शन। ऑपरेटर कन्वर्शन प्री प्रोसेसिंग के दौरान, प्री प्रोसेसिंग के दौरान अगर मान लो सपोज मेरे प्रोग्राम में लिख के आ रहा है ए माइनस माइनस, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा? ड्यूरिंग दिस इट कन्वर्टेड इनटू ए इक्वल टू ए माइनस वन। बात वही है। ए माइनस माइनस का मतलब ए की वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट कर दो। तो ये क्या कर देगा? ए माइनस माइनस को किससे रिप्लेस कर देगा? ए इक्वल टू ए माइनस वन से। ठीक है। तो दिस आर द वर्क ऑफ प्री प्रोसेसर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू प्योर high level language. Then this pure high level language, it goes to the compiler, and compiler converted into assembly language, or I can say low level language. मैंने आपको previous video में already बता दिया compiler का रोल क्या होता है। It converts high level language into low level language, and also it gives the error and warnings also. ये मैंने आपको already previous video में मैं discuss कर चुकी हूँ। असेंबली लैंग्वेज का ये जरूर लो लेवल लैंग्वेज है, बट इट इज नॉट इन द बाइनरी फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स। इट यूजेस द निमोनिक्स, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. Please remove this confusion from your mind that it is in the form of binary. No, it is in the form of mnemonics. It is a low level language, but it is not in the form of binary form. Then next come the assembler. assembler के लिए इनपुट क्या जाएगा? असेंबली लैंग्वेज, जो किसने दी हमें? कंपाइलर ने। अब असेंबलर क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका रीलोकेटेबल। किस में कन्वर्ट कर देगा? रीलोकेटेबल मशीन कोड में। रीलोकेटेबल मशीन कोड, जिस कोड को हम मेमोरी में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, रीलोकेटेबल का मतलब ये होता है। बट मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं कि असेंबलर जो होता है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है। ठीक है, किस लैंग्वेज, ए मान लो एक असेंबलर है वो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के लिए बना है, तो वो असेंबलर किसी दूसरी लैंग्वेज दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेगा। हर एक हार्डवेयर या हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अपना खुद का एक असेंबलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर लिंकर एंड लोडर। लिंकर एंड लोडर में क्या गया? आपका जो रीलोकेटेबल मशीन कोड है ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका एब्सोल्यूट मशीन कोड। एब्सोल्यूट मशीन कोड का क्या मतलब है? कोड जिसको हम असेंबल, जो जो वही काम करेगा इट्स स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे, मेमोरी की एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे ही काम करेगा। एब्सोल्यूट मतलब उसको एक मेमोरी में एक जगह एक एड्रेस एलोकेट हो चुका है कि भैया आपको यहीं रहना है। ठीक है, दैट इज योर एब्सोल्यूट मशीन कोड। तो सबसे पहले लिंकर आता है पिक्चर में। लिंकर क्या करता है? आपका सारी ऑब्जेक्ट फाइल। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या है? जो कंपाइलर का आउटपुट होता है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट फाइल, डॉट ओ फाइल। डॉट ओ फाइल इज द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर। ये बहुत सारी जो भी ऑब्जेक्ट फाइल होती है, डॉट ओ वन, डॉट ओ टू, इसको एक सबको एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, एक लिंक कर देता है। नाम से समझ आ रहा है, लिंक कर देता है, एक सिंगल मर्ज कर देता है एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में। कौन करता है? आपका लिंकर। अब ये सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। ठीक है, अब ये कहाँ पे लोड होती है? रन
कहाँ पे लोड करेंगे? लोडर इसको क्या करेगा? मेमोरी में लोड करेगा। लोडर इसको क्या करेगा? एक मेमोरी में लोड करेगा जहां पे एग्जीक्यूट होगी। तो इफ वी देर इज अ वन नोट, अगर मैं बात करूं किसी भी कंपाइलर की जो आप लोगों ने यूज करे होंगे, टर्बो सी या जीसीसी कंपाइलर, इसमें सारे फेजेस, जितने भी फेजेस होते हैं कंपाइलर के, ऑल द फेजेस आर इंक्लूडेड टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड। सारे फेजेस एक साथ इंक्लूड होते हैं। दिस इज अ नोट, यू कैन टेक इट एज अ नोट, है ना? इफ वी टॉक अबाउट एनी कंपाइलर लाइक टर्बो सी, जीसीसी एक्सेट्रा, ऑल दीज फेजेस आर इंक्लूडेड टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू machine code. These are the references. I will take help from these references to cover this video. If you like this video, then please like, share, and subscribe this CTL ABS channel. Thank you.